Hello students, welcome back to YouTube channel that is AMR Education. So last class we discussed angles and its types. Okay, today now we can discuss what is similarity and what is a congruency. This is very important for class 10. So let's start. So here, what is similarity? Similarity is nothing but same shape is same but sizes are different. Okay, so let's take an example here. Look here, the figure that is a circle. Here there is a big size, and comparing to this circle, it is very small one. Am I correct? So these two figures are similar to each other. So this is the symbol for similarity. Okay, we can denote it as like this. This is the symbol for similarity. And let's check that these two triangles. So these two triangles, the shapes are same, but these two sizes are different. Are you getting, students? So comparing to similarity, now check once what is a congruence. Congruence is quite different than similarity. See, shape and size both are same. मतलब शेप और उसका साइज दोनों भी इक्वल होगा, उसी को हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं. सो चेक हियर, these two circles are same shape and also equal in size, and these two triangles are also same in shape but and also equal in size. We can denote it by like this. This is the congruency symbol and this is the similarity symbol. Understand, students? Okay, please pause the video to note down. Let's see in the figure, in the congruency figure, the triangle ABC is congruent to triangle PQR. Am I correct? Why it is a congruent triangles? Because these two shapes are same and sizes are also same, so that we are denoted as these two triangles are congruent triangles. Now coming to the similarity, see here, triangle ABC, this is for similarity. Okay, triangle ABC is similar to triangle PQR. Why it is a similar? Why it is a similar? Because these two triangles are same shape but these two triangles sizes are different. That is called similarity. Understand? Some important axioms based on congruency. So let's start. Listen here. SAS axiom is nothing but side angle side axiom. That means the two triangles are congruent if and only if two sides and the including angle of one triangle are equal to the corresponding sides and included angle of another. इसका मतलब क्या होता है? Side angle side. So everyone knows that this is AB is one of the side, AC is one of the side, and BC is one of the side. Am I correct? And here also PQ, PR, QR is also one of the sides. See here, side angle side. That means you can take any side of these two triangles. For example, I am taking AB, side AB. This is a line segment. AB line segment is congruent to PQ line segment. PQ bar. Are you getting, students? So now angle side. So one side, this side and this side is equal, and another one angles are equal. That means angle B and angle Q. You can take any angle, not only these two. You can take P and A. Otherwise you can take R and C. Any angle you can take. Okay, so but here we are taking here angle B and angle Q. So you can also say that angle Q is congruent to angle B, or angle B is congruent to angle Q. Okay, another side we have this side BC and QR. That is BC line segment is congruent to
Q or line segment. Therefore, if you satisfy these three types, then triangle ABC is congruent to triangle PQR. Which property? By SAS rule. By SAS rule. What is SAS here? Side angle side. Side angle side मतलब आप कुछ भी साइड लो, मान लीजिएगा. Okay. Listen here. When these two triangles, the triangle ABC and triangle PQR, कब कॉन्ग्रेंट होते हैं? ताकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होना है. करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होना है, तभी इसे हम कॉन्ग्रेंसी कहते हैं. मान लीजिएगा AB एंड PQ, AB PQ दोनों साइड से इक्वल होंगे जब इक्वल लिखो. AB इज इक्वल टू PQ एंड एंगल ये वाला ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PRQ. अगर ये दोनों भी इक्वल होंगे अनदर साइड, हमको तो रूल लाना चाहिए. कौन सा रूल? साइड एंगल साइड का. एक साइड आ चुका है, एक एंगल भी आ चुका है और दूसरा साइड आनी चाहिए. आप चाहे BC तो लो और PQ तो लो. अगर आपने PQ लिया है तो आप AC ही लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से, PR एंड AC आर बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड. अब आप बताइए QR का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? QR का करस्पॉन्डिंग साइड तो BC है. ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ भी कोई एक साइड ले लो. मैंने तो PR ले ली हूँ. ओके, PR is equal to AC. PR is equal to AC. Then we can satisfy that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Understand everyone? So let's start another axiom. Axiom is nothing but one type of rules on congruency. Okay students, please note down. So now angle, side angle, ASA. What is mean by ASA here? ASA is nothing but angle, side angle axiom or rule. Okay, so let's start. Draw these two triangles. कब कॉन्ग्रेंट होना है? अगर हमने कुछ भी एक रूल सेटिस्फाई करेंगे तो वो कॉन्ग्रेंसी हो जाता है ट्रायंगल. ओके, मान लीजिएगा ये B, C, P, Q and this is a R. Now our question is, कब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस होते हैं? कोई भी एक रूल सेटिस्फाई करना होगा. अगर आप एंगल साइड एंगल रूल करो, और पिछले मैं बोली थी ना साइड एंगल साइड, कुछ भी एक रूल फॉलो करो और वो कॉन्ग्रेंसी हो जाएगा. इधर देखिए, व्हाट इज एंगल साइड एंगल का मतलब क्या होता है? अगर ये एंगल, वेट अ मिनट, अगर ये एंगल P को इक्वल होता है एंड अनदर वन साइड लेना चाहिए, दैट मीन्स AB एंड PQ वाला साइड ये दोनों इक्वल हुए, दैट मीन्स these two are corresponding sides एंड अनदर एंगल ये वाला है, कुछ भी मान लो ये वाला है C. सो C एंड R इस दोनों की इक्वल होते हैं तो एंगल साइड एंगल रूल सेटिस्फाई होगा. मैम प्लीज लिख के दिखाओ. ओके श्योर, मैं लिख के दिखाऊंगी. लिसन, मैं एंगल साइड एंगल, कुछ भी एक एंगल लो, चाहे B, C, ये कुछ भी लो. अब मैंने तो एंगल C लिया है. ओके, सो एंगल C इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल R. ओके, सो नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ओके, नाउ एंगल हो गया एंड साइड, कुछ भी एक साइड ले लो. मैंने तो ये B एंड PQ साइड लिया. क्यों ये ही दोनों ही लिए हैं? मैम क्यों ना हम ये B एंड QR दोनों साइड, ये दोनों साइड्स क्यों नहीं ले सकते? मतलब these two are not corresponding lines. Okay, these two are not corresponding sides. Sorry, not lines. These two are not corresponding sides. So corresponding sides का कौन से हैं? AB is equal to PQ. Okay, AB is equal to PQ. अगर आप QR लेना चाहते हैं तो BC is the corresponding side. That means BC is equal to QR ले सकते हो. Okay students. ओके, ये तो एंगल हो चुका है और वन ऑफ द साइड भी आ चुका है. एंड नाउ
एंड अनदर वन इज एंगल, कुछ भी लो एंगल, मैंने तो इधर दूसरा एंगल क्या लिया है, एंगल सी एंगल आर तो कंप्लीट हो गए हैं, और एंगल ए एंड एंगल पी ले रही हूं मैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देयरफॉर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, कौन से कंडीशंस, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे जब क्या कहेंगे हम, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय, क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ ये ट्रायंगल, बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल रूल। अंडरस्टैंड एवरीवन, प्लीज नोट डाउन। So now listen, what is a side? Yes is nothing but side. कुछ भी दो triangles ले लो and इसका AC is equal to PR, am I correct? AC is equal to PR side, okay? And another side, कुछ भी एक side ले लो, मतलब AB is equal to PQ, देखिए PR and ये वाला PQ दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स अलग अलग साइड्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो एंड नेक्स्ट वन BC इज इक्वल टू QR, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्यों कॉन्ग्रुएंसी हुआ है ये, बाय द रूल ऑफ साइड एक्सियम। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, प्लीज नोट डाउन। Now, what is RHS rule? So, कोई भी एक टू राइट एंगल्स ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल्स ले लो, और नाउ क्या होगा, RHS इज नथिंग बट व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, एक्चुअली व्हाट इज राइट एंगल इज नथिंग बट इट मेजर्स 90 डिग्रीज। ऑलरेडी मैंने एंगल्स के बारे में पिछले वीडियो में आपको सब कुछ क्लियरिटी से दे चुकी हूँ, प्लीज आप एक बार चेक कीजिए। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो क्लिक करने से आपको उस वीडियो में जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्रीज होता है वही राइट एंगल होता है, am I correct? सो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये तो एंगल है, ओके, दिस इज ए एंगल, टू रेस फॉर्म होते हैं वन इनिशियल पॉइंट से, दिस इज ए एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये दोनों एंगल्स, दैट मीन्स वी हैव थ्री साइड्स आएंगे, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, सो नाउ लिसन हियर, सो टू राइट एंगल ट्रायंगल्स होना चाहिए। सो अगर एंगल बी एंड एंगल क्यू ये दोनों 90 डिग्रीज हो तो, दैट मीन्स ये बी angle B is equal to angle Q, okay, angle B is equal to angle Q, and another two sides like BC is equal to QR, and another side AC is equal to PR, अगर ये सब कुछ इक्वल हो तो हम ये कह सकते हैं कि these two triangles are congruent by RHS, very important one, please note down. So listen once again, RHS is nothing but right angled hypotenuse side, listen, right angle का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्रीज होता है वो right angle होता है। ओके, सो एक एंगल तो आ चुका है, एंड नेक्स्ट हाइपोटेनस एक और साइड एक। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, ये वाला जो साइड का ऑपोजिट होता है ना, ये ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ये हाइपोटेनस एंड ये हाइपोटेनस दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, एंड अनदर वन साइड, आप साइड कुछ भी लो, चाहे ये लो, ये दोनों कुछ भी लो, आपको RHS एक्सियम रूल पता चल जाएगा। फिर से एक बार सुनो, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का मतलब क्या होता है। सो एवरीवन नोज दैट दिस इज ए राइट एंगल, दैट इज ABC, triangle ABC. Okay, right angle is nothing but we have a 90 degrees at angle B. Okay, and now what is the hypotenuse? This is the hypotenuse, this is opposite side,
and what is this? This is the adjacent side. ये सबको पता है. Okay, so this is the opposite side, this is the adjacent side, and this is the hypotenuse. Okay students, so now what is the rule? R H S. So अभी एक triangle below, that is P Q R. Okay, so angle B and angle Q is equal क्योंकि angle B is having 90 degrees and angle Q is also having 90 degrees. Okay, right angle था हो गया. And now what is an hypotenuse? And we know that hypotenuse is AC. Okay, और ये ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है? PR. That means AC is equal to PR. ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए. ओके, एंड अनदर वन साइड. अगर साइड के बारे में बात करेंगे तो अब बाकी के साइड्स तो अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड है. आप कुछ भी कौन सा तो एक साइड ले लो. ओके, चाहे मैंने तो अपोजिट साइड ले ली. दैट मीन्स ये बी, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? ये बी का करस्पॉन्डिंग साइड तो पी आर है. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी आर. ए बी इज इक्वल टू पी आर. सो कौन से रूल्स है? 3 रूल्स है. एक, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. क्यों ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स? क्योंकि एंगल बी इज हैविंग 90 एंड एंगल क्यू इज आल्सो हैविंग 90 डिग्रीज. और नेक्स्ट कौन से 2 साइड्स इक्वल है? एक हाइपोटेनस वाला और एक दूसरा कुछ भी एक साइड वाला, लाइक ए बी और बी सी, कुछ भी लो, आपकी मर्जी. सो अगर ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे, जब हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. अंडरस्टैंड एवरीवन? प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स. ओके, लुक, सो लेट्स मैच दिस. क्या है? ए सी एंड डी एफ दोनों साइड है ना. ए सी एंड डी एफ साइड है, और ये बी एंड डी ई एक साइड है, और बी सी एंड ई एफ एक साइड है. दैट मीन्स साइड साइड साइड. सो यू कैन मैच नाउ ऑप्शन सी. साइड साइड साइड. ऑप्शन सी. ओके, एंड नाउ साइड एंगल साइड. किधर है साइड एंगल साइड? ऑप्शन डी. ओके, नाउ सी दिस. कौन सा फॉर्म है ये? कौन सी ट्रायंगल है ये? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ऐसा है, मतलब दिस इज अ 90 डिग्रीज. ओके, दैट मीन्स आर एच एस. और एच एस, और एच एस का मतलब क्या होता है? एक राइट एंगल. H मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस. एंड अनदर वन S इज नथिंग बट अ साइड. इट मीन्स RHS रूल कहाँ है वो? ऑप्शन बी. ओके, एंड द लास्ट वन दैट इज एंगल साइड एंड एंगल. किधर है एंगल साइड एंगल? दैट इज ऑप्शन ए. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स. सो एक्सरसाइज फर्स्ट. Fill in the blanks using the correct word given in the brackets. So all circles are congruent or similar. Listen, circles मतलब छोटा वाला भी हो सकता है और बड़ा वाला भी हो सकता है. Am I correct? सेम साइज तो नहीं हो सकता ना. सेम रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर्स होगा और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर्स होगा. I mean 2 सेंटीमीटर्स वाला कुछ भी हो सकता है ना. मतलब सेम साइज नहीं हो सकता. अगर शेप सेम हो और साइजेस डिफरेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? सिमिलर सर्किल्स आर सिमिलर फिगर्स. सो नाउ आवर ऑप्शन 1 इज सिमिलर. ओके, सिमिलर. एंड कमिंग टू सेकेंड वन. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. ऑल स्क्वायर्स आर डैश. स्क्वायर्स का मतलब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना. तो इसका साइड्स इसका एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्रीज. पूरे 90 डिग्रीज ही होते हैं. इधर भी 90 डिग्रीज होते हैं. सेम होते हैं, मतलब शेप्स आर सेम, बट साइजेस क्या होते हैं? साइजेस आर डिफरेंट. मतलब ये भी क्या होते हैं? अगर शेप सेम एंड साइजेस डिफरेंट हो तो दीज 2 फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स. Am I correct? So our question number 2 is similar. Understand? So next question is all dash triangles are similar. मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कौन सा ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? सिमिलर का मतलब क्या है? मतलब ऑल साइड्स और इक्वल, मतलब सिमिलर, ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ऑल साइड्स और इक्वल होते तो वो ट्रायंगल को क्या कहते हैं? हम सबको पता है, दैट इज इक्विलैटरल triangle. So our option is equilateral triangle. Isosceles is nothing but what? So listen, isosceles का मतलब क्या होता है? These two sides are equal and this side is different. Okay, ये तो सिमिलर नहीं हो सकता ना. These two triangles are not similar. ऐसा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो? That means all sides equal होना चाहिए. All sides equal होना चाहिए. वो only equilateral triangle में ही हो सकता. So our answer is equilateral triangle. So coming to next one, two polygons of the same number of sides are similar. Their corresponding angles are dash. So polygons is nothing but a closed figure. मान लो this is one of the closed figure. The triangle is one of the closed figure. That means two polygons we need. That is two triangles of the same number of sides. Same number of sides are similar. That means पूरे similar होंगे. That means this triangle is similar to this triangle. Then what are the corresponding sides? Of course, these corresponding sides are equal. Corresponding sides are equal. That means अगर मान लीजिएगा ये BC PQR, so AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PQ. That means these corresponding sides are equal. So इधर ये blank में equal है इसका आंसर, equal. Okay, and their corresponding sides are dash, and their corresponding sides are dash. That means वो तो proportional होते हैं ना.